Our next topic is limitation of the first law of thermodynamics. Just now we had seen what are the uses or what are the applications of the first law of thermodynamics. See, on the basis of first law of thermodynamics, it has two limitations. By using first law of thermodynamics, it is not possible to know whether any chemical reaction will occur on its own. कोई केमिकल रिएक्शन अपने आप होता है या नहीं होता है. If we want to use first law of thermodynamics, we cannot find out that. It does. Okay, first law of thermodynamics doesn't give us any idea regarding spontaneity of the reaction. Let me explain you. Okay, in very simple way. Suppose certain students, okay, are early morning. If you come to this road, you will find certain students. They are going to Ankur school. How do you recognize them? By looking at their uniform. Particular uniform immediately tells you, okay, कि अरे यार ये कलर वाला यूनिफॉर्म पहना है, okay, इंस्टूडेंट ये young boys and girls ने, then immediately we can tell they are definitely students of Ankur school. So that uniform is identity. It gives you certain idea, correct or not? And if another boy or girl has some other kind of uniform, you will definitely say this boy or girl does not belong to Ankur school but some other school. Correct or not? Yes or no? We'll continue further. Now understand one more important point. Now can you tell me, suppose if you spot certain students who belong to Ankur school, can you tell me वो स्टूडेंट साइंस ले रखा है, उन्होंने कॉमर्स ले रखा है, या तो फिर वो कौन से स्टैंडर्ड में? By looking at uniform, you can find out one information. What is that information? They belong to Ankur school, but that information is not sufficient. If you want to know detail about the student, you do not get that detail from that uniform. Uniform has certain ideas, certain information, not all. If you want to find out कि कौन से स्टैंडर्ड का यह बच्चा है, then what you need to do? I card. Look at in the I card. I card gives you the information. Okay, 11th E. Then bracket में लिखा ENG. That means 11th standard English medium. It has Gujarati medium as well as, okay, as well as English medium. So we don't know which, okay, means now we know the English medium, but still it doesn't have the idea which stream, science or commerce. Might be if the I card has that, it has been mentioned science or commerce, then it gives you more information, otherwise not. Are you following me? The first law का भी ऐसा ही है. First law, if we know, then it gives us certain idea. It gives us the idea about energy exchange. See, without confusing you much, let me give you one example. अच्छा, मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे दो सेपरेट रिएक्शन हो रहे हैं. ध्यान से देखना. मेरे पास एक कंटेनर के अंदर आइस था और बाजू में सराउंडिंग है, ओके, रूम टेम्परेचर. डेफिनेटली, ओके, वो इसको हीट देगा. लेट्स से के x जूल ऑफ हीट ice has absorbed, and it will convert into what? Water. Am I right or wrong? Yes. अच्छा, 2 मिनट उसको छोड़ देते हैं साइड में. ओके, मेरे पास कंटेनर में पानी है. जितना पानी यहां पे था उतना ही पानी है, वाटर है. अगर वो x जूल ऑफ हीट समहाउ, सपोज कोई ना कोई रीजन से निकाल दे रहा है वापस, सो वो आइस में कन्वर्ट हो सकता है. फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता था मालूम है? फर्स्ट लॉ सेज
During any process in the universe, total energy remains constant. Neither it can be created nor it can be destroyed. यहां पे एक्सचेंज कितने जूल का हुआ था? ओके, तो यहां पे फर्स्ट लॉ ओबे हो रहा है, यहां पे कहीं पे डिस्ट्रॉय किया था, क्रिएट किया था हमने? नहीं, वो ट्रांसफर हुआ था रूम से इसमें। फर्स्ट लॉ ओबे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ये प्रोसेस होगा तो इसके अंदर ये फर्स्ट लॉ ओबे होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये प्रोसेस के अंदर भी ये एनर्जी हमने नहीं बनाई क्या? वो ट्रांसफर हुई। कहां से ट्रांसफर हुई? फ्रॉम वाटर टू एटमोस्फियर। सो क्या यहां पे भी फर्स्ट लॉ ओबे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फर्स्ट लॉ सेज ओनली वन थिंग, एनर्जी शुड बी ट्रांसफर्ड, it should not be created nor it should be destroyed. Isn't it being transferred over here? यहां पे भी फर्स्ट लॉ, तो मतलब उसका मतलब क्या है मालूम है? उसका मतलब ये निकला कि यहां ये रिएक्शन में भी फर्स्ट लॉ ओबे हो रहा है, इसके अंदर भी ओबे हो रहा है। फर्स्ट लॉ इज बीइंग ओबेड इन बोथ द केसेस, करेक्ट? बट ऑल ऑफ अस वी नो, अगर आप आइस को रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो अपने आप मेल्ट होता है। इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप होने वाला। बट आपने कभी ऐसा देखा? कंसिडरिंग रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब वी आर लिविंग इन इंडिया 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, अपने ग्लास वाटर को, ग्लास के अंदर एक पानी को थोड़ा सा पानी भर के रख दिया और अपने आप वो आइस बन गया। हैव यू सीन दैट? रूम टेम्परेचर की बात करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटार्क्टिका, करेक्ट? रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या ये होता है? नहीं होता है। मतलब दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब आपके पास दो रिएक्शन थे, एक स्पॉन्टेनियस था, एक नॉन स्पॉन्टेनियस था, दोनों के अंदर फर्स्ट लॉ ओबे हो रहे। एम आई राइट? ओके, अभी मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं आपको एक बढ़िया सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके अंदर फर्स्ट लॉ ओबे होता है। गिव मी, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? गिव मी द आंसर। इफ यू गिव मी करेक्ट आंसर, आई विल गिव यू 100 रुपीज। गिव मी द आंसर। दो में से एक ऑप्शन मुझे देना है आप लोगों को। स्पॉन्टेनियस मतलब फर्स्ट लॉ जहां पे ओबे होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही होता है, तो कैसे बोल सकते हो स्पॉन्टेनियस? एक रिएक्शन, ये मेरा आइस था सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो ये रिएक्शन अपने आप होगा आइस H2O लिक्विड के अंदर। बट सपोज ये H2O लिक्विड होता तो मैं ऐसा रिएक्शन लिख रहा हूं, वो भी तो रिएक्ट इनटू प्रोडक्ट है, वो भी तो रिएक्ट इनटू प्रोडक्ट है। सो अगर आपको कोई एक रिएक्शन दिया जाता है और इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये फर्स्ट लॉ ओबे करता है, एंड देन पूछा जाता है कि ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है बताओ, तो आप बोलोगे आवा अग्रा सवालों नहीं पूछवाना, केम के आनो आंसर पॉसिबल नथी। Okay. You cannot say anything about this by looking at this. Once you say it is first law is obeyed, then you cannot say is okay, is spontaneous or non-spontaneous. You cannot say anything about that, because first law has a limitation. Like Ankur's school uniform had a limitation. It gives you the idea about the school. It doesn't give you the idea about the correct in which standard the child belongs to. Correct or not? Are you following me? Yes. She can't pay attention to my lecture. Okay. Are you following me? That uniform had a limitation, so the first law has a limitation. What is the limitation? The reaction is spontaneous or non-spontaneous? It can't say anything. Okay, another example. यहां पे एक बढ़िया सा है मेरे पास कंटेनर। ओके, पहले केस में ऐसा था
कि एक कंटेनर के अंदर काफी सारे गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। कैन यू सी दैट? दूसरा कंटेनर जो हमारे पास है वो एम्प्टी है, और दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है एक वाल्व से, और वाल्व क्लोज्ड है। करेक्ट? इफ आई ओपन द वाल्व, ऑब्वियसली यहां के मॉलिक्यूल सब इस तरफ आ जाएंगे, एज यू कैन सी ओवर हियर। ये अपने आप होने वाला रिएक्शन। एज सुन एज यू ओपन द वाल्व, इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेट्स से ड्यूरिंग दिस प्रोसेस y amount of energy exchange according to first law of thermodynamics, फर्स्ट लॉ ओबे हो रहा है, फर्स्ट लॉ ओबे हो रहा है। अगर इसका उल्टा रिएक्शन देखते तो जितनी एनर्जी यहां पे एक्सचेंज हुई है उतनी ही वापस एक्सचेंज होनी चाहिए। उल्टा रिएक्शन का मतलब कि हमारे पास दो कंटेनर है, कंटेनर नंबर 1 एंड 2, दोनों में गैसेस इक्वल अमाउंट में भरे हुए हैं, दोनों के बीच में एक वाल्व है। वाल्व को अगर आप ओपन करते हो, क्या ये सबके सब गैस के मॉलिक्यूल एक कंटेनर में इकट्ठे हो जाएंगे? वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन वो रिएक्शन के लिए भी एनर्जी तो इतनी ही लगती है। दैट मीन्स उसमें ओके दोनों रिएक्शन, एक कंटेनर में से दो कंटेनर में गैस का फ्लो होना, उसमें भी फर्स्ट लॉ ओबे हो रहा था। ओके दो कंटेनर में से एक में ही सबका सब गैस के मॉलिक्यूल्स चले जाना, उसमें भी फर्स्ट लॉ ओबे हो रहा था। बट वन रिएक्शन वाज, वन प्रोसेस वाज स्पॉन्टेनियस, अदर प्रोसेस वाज नॉन स्पॉन्टेनियस। सो फर्स्ट लॉ जहां पे ओबे होता है मतलब वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। तो आपको कोई भी रिएक्शन बताया जाए, बोला गया कि ये रिएक्शन फर्स्ट लॉ ओबे करता है, बोलो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, कुछ भी नहीं बोल सकते। दैट्स द लिमिटेशन ऑफ first law. Correct? One more example has been given to us. Fantastic example. Let me explain you. Suppose all of us we know acid plus base gives you salt plus water plus energy. You know this reaction? उसमें हीट एनर्जी बाहर निकलती है। तो मतलब क्या हुआ, अगर आप एसिड और बेस को रिएक्ट करते हो, इमीडिएटली फर्स्ट लॉ ओबे होता है, रिएक्शन अपने आप होता है, सॉल्ट मिलेगा, पानी मिलेगा और एनर्जी बाहर निकलती है। फर्स्ट लॉ इज बीइंग ओबेड। ओके, अपने आप होने वाला रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है। लेट्स सी अनदर रिएक्शन। कोई होता है ना हमारे जैसे थोड़ा सा साणा, दिमाग का थोड़ा टेढ़ा, एक ग्लास लिया, जितना क्वांटिटी यहां पे पानी निकलता था उतना क्वांटिटी यहां पे डाला पानी का, उसके अंदर जितना क्वांटिटी सॉल्ट निकला था वो सॉल्ट डाल दिया इसके अंदर। ओके, और एक स्पून ले ली और स्पून स्टरर से उसको स्टर करने लग गए, उतनी बार स्टर किया जितनी एनर्जी बाहर निकली उतनी वापस दे दी। मतलब ये तीनों मिला के ये वापस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनर्जी should become acid and base। नहीं होता है, वरना तो घर घर पे एसिड की फैक्ट्री बन जाती। ओके, पानी लो, थोड़ा सोल्ट डालो, हमारे घर पे मिलने वाला एसिड सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे प्योर, प्यारा बोल गया मैं, सॉरी, is the most purest form of acid we produced, no one else। बाजू वाला तो बिल्कुल नहीं। ओके, you know ऐसा नहीं होता है यार, it doesn't happen। So दोनों जगह पे फर्स्ट लॉ ओबे होता है, बट वन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, सेकंड रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। आई हैव गिवन यू 3 एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की 2 लिमिटेशन है। मैंने पहली लिमिटेशन पढ़ाई आपको, कौन सी है? इट डजंट गिव एनी आइडिया अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। नो स्पॉन्टेनिटी। ओके, इट डजंट से कि भाई आ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस છે કે નહીં, પોતાની રીતે થશે કે નહીં થાય। કરેક્ટ ઓર નોટ? Are you following this? Second limitation is this कि after 15 minutes कितना एसिड कितने बेस के साथ रिएक्ट करेगा फर्स्ट लॉ से नहीं बता सकते हो। फर्स्ट लॉ डजंट गिव एनी आइडिया अबाउट द हाउ मच रिएक्टेंट reacts
and converts into product in given time. टाइम के अंदर कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इट डजंट गिव एनी आइडिया, हमको बताएगा नहीं कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रहा है. ओके अगर वो पढ़ाई करना तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाई करना पड़ता है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है. इट डजंट गिव दिस आइडिया. इज दिस अंडरस्टूड? बराबर है कि नहीं?